Yeah, very good afternoon to all of you. Now we are going to discuss GD for Bank of India. The topic is, should Chinese product will be banned in India or not? Okay guys, we will start. Okay, so good morning, respected sir, and all my friends. My name is Vishal Dubey, and our topic of GD today is, should Chinese product be banned in India or not? So, firstly, as we all know that the trade plays a very important role in determining the GDP and performance of our country, where the more exports lead to the payment surplus and more imports lead to the payment deficit in GDP, which has a negative impact on GDP. But before saying that yes or no to the whether we should Chinese products should be banned or not banned, we should see some of the features, like is there any impact, negative or positive, on our country. Like if we should not directly ban the products. Let's suppose if we can't produce a product that the cost is very high of making it, and the cost of importing it is less, so it's better to import from that other country rather than producing in our country. So there are various factors that we must decide whether that a ban should be put on it or not. So I will open this GD for all to contribute in this. Thank you. Sir, we are living in an interconnected world where we are dependent on each country of the world. When we exported them something, and we also at the same time we also exported them. So and China is also our one of the largest trading partner, and it is the currently third largest trading partner of India. And we imported them for many things like medicine, plastics, and electric exports. And ban these items, I don't think that will solve the problem. I think we should look at the extra problem, like we will try to मतलब हम उसको धीरे धीरे अपने देश में बनाना चाहिए. We have to promote our small scale industries also, because at the time of Diwali, yes, sir. At the time of Diwali we yes, only sir. told that we cannot purchase the lights of China, we have to burn the diyas and all from Indian manufactured. Okay, it means not only for the festival season, but we have to take a proper decision so that our industry, our small scale industry, will also promote some of the important things with that we can use in India. सर मैं भाई आ रहा था. इसीलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम भी लॉन्च किया है, मेक इन इंडिया, ताकि हम धीरे धीरे दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना कम होना पड़े. और इसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि हम वी आर द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड. एंड सो इफ वी try to create those things that we export from other countries, then we can be able to be self-dependent. So ban the import from China, I don't think that will solve the problem, but manufacturing will solve the problem, and then we cannot be dependent from other countries. Okay, sir. Jatin. सर मेन हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जिसका कॉस्ट आता है 30 बिलियन के आसपास. टोटल हमारा ट्रेड डेफिसिट सर 100 बिलियन के आसपास रहता है, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा हम करते हैं. सर इसके लिए PLI स्कीम इंट्रोड्यूस की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने. अभी मैक्रॉन कंपनी भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही है. सर हम सबको जब ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर्स देंगे तो वो भी एक प्लांट हमारे यहाँ लगाएंगे, धीरे धीरे हम इसको ठीक कर सकते हैं. लेकिन अगर ये बोला जाए डायरेक्ट ही कर दो तो वो तो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि हमको पहले खड़ा होना पड़ेगा पैर पे, तभी कोई दूसरा हट सकता है, नहीं तो वो पहले से ही खड़ा है. और सर हम उसकी जो कॉस्ट जो है, अगर हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमको विशाल ने बताया कि वहाँ से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा है, तो हम अभी उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें किसी को एक अच्छा करना पड़ेगा. और सर एक ये भी है कि हम WTO के मेंबर हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं. हम डायरेक्ट किसी एक कंट्री को बैन नहीं कर सकते, उसके इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज भी देखती हैं कि एक कंट्री जो है डोमिनेट कर रही है, एक किसी कंट्री को बैन कर सकती है तो वो किसी और को भी बैन कर सकती है. तो WTO में ये भी मतभेद ना हो, क्योंकि WTO के साथ मतभेद हमारे पहले से ही फिशरी सेक्टर्स में चल रहे हैं, तो ऐसे डायरेक्ट बैन नहीं हो सकता. तो धीरे धीरे करके हम इसको कर सकते हैं सर.
और जैसे कि जतिन आपने सही बोला कि हम लोग WTO के मेंबर है, तो हम लोग कोई भी चीज डायरेक्ट मतलब बैन नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ही प्रोडक्ट को मतलब प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन भी निकाला था ड्यूरिंग लॉकडाउन, वोकल फॉर लोकल, मीन्स के सेल्फ रिलायंट बनाना इंडिया को और अपने ही प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो अभी तो पॉपुलेशन में फर्स्ट पे है। तो हम लोग अगर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे और उन लोगों के प्रोडक्ट को अचानक से तो बंद नहीं कर सकते, बस अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करते हैं तो उनके प्रोडक्ट ऑब्वियसली बंद होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। और जैसे कि आप लोग के पॉइंट्स को मैं कुछ इसमें पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जैसा जतिन ने भी बताया कि हमारा मेजर जो इंपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ज़्यादा रहता है, जैसे सेमी कंडक्टर्स हो गए या फिर चिप्स वगैरह हो गए, ये सब हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस अभी नहीं कर पा रहे हैं। बट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके लिए एक स्टेप ले रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने करंट में भी पढ़ा है, रिसेंट में पढ़ भी रहे हैं कि अभी गुजरात में टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी, ये भी हमारे गुजरात में गिफ्ट सिटी में सेमी कंडक्टर की फैसिलिटी, जो सेमी कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा, चिप्स वगैरह या BLCC, ये सब चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा। तो हाँ, ये हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम लोग इसमें भी इम्प्रूव कर जाएंगे। बट जब तक ये सारे सिचुएशन कंप्लीट तरीके से हमारे फेवर में ना हो, इन फेवर में यहाँ पे मतलब है कि जो इम्पोर्ट, जैसा कि पहले मैंने बोला कि इम्पोर्ट करने की कॉस्ट जो है वो जो दूसरा प्रोडक्ट है उससे मतलब हमारा जो इंडियन प्रोड्यूस होने कॉस्ट है वो कम हो जाए एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट से, तब तक हमें इन प्रोडक्ट्स को बैन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है और हम इसमें धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, और हमको हर समय रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो अगर हम लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया तो हमारे पास रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज भी हो सकती है, जिससे कि हम लोग का और भी जो हम लोग प्रोडक्ट्स बना के दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली इस पे नहीं आ सकते कि हम लोग प्रोडक्ट बैन करना चाहिए। ओके, कौन कंपनी सर दूसरे देश कंक्लूड कौन करेगा? एक कंपनी दूसरे, एक पॉइंट सर मेरे को ऐड करना था। कर लो। जैसे सर एक कंपनी कोई दूसरे कंट्री में अगर ऑपरेट करना चाह रही है तो वो बेसिक 2-3 चीजें देखती है कि लेबर का कॉस्ट कैसा है और सुविधाएं कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है उस कंट्री में। और सर तीसरा जो मेन सबसे ज्यादा होता है वो सर लॉजिस्टिक का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है रोड का, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी जब पहुंचा रही है तो कितनी जल्दी पहुंचा रही है। ये सब चाइना में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए सर उनकी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है तो उनके प्रोडक्ट सस्ते पड़ रहे हैं। हमको अगर ये इन्वॉल्वमेंट देना है तो पहले लॉजिस्टिक को भी अच्छा करना पड़ेगा। हमारी 10-15% जाती है लॉजिस्टिक में जीडीपी का, उसको सर 8-9% तक करना पड़ेगा, तभी अच्छा मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो वो और अट्रैक्टिव फील करेंगे कि हाँ यहाँ सब कुछ अच्छा है, तो वो ओपन कर सकती हैं। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि जतिन ने बोला कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और डेवलप करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम भी ला रहा है। लाइक अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च हुआ है, गति स्कीम। इसमें पूरे इंडिया का रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई है एंड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है इसमें। तो yes, we are developing our roads infrastructure and in the next few years I think our dependence on China will be reduced as of now. तो इसको मैं कुछ फ्यू लाइंस में कंक्लूड करना चाहूँगा ये बोलकर कि रोहन कुछ बोलना चाहेगा। बोल मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे उसकी डायरेक्शन में जब सलमान वैली के बाद इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये डिसीजन लिया गया था कि हमको अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी और चाइना पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। इस वजह से एक स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी लॉन्च करी गई थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्री बहुत ही वास्ट है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई एक स्पेशलिटी जरूर है। तो और जैसे रिसेंट में भी हमने देखा है, जैसे जो सिगरेट लाइटर्स होते हैं अंडर 20 उनको भी बैन किया गया है, उनका भी बहुत चाइना थाईलैंड इन सब जगहों होता था। उसकी वजह से हमारी जो मैचबॉक्स इंडस्ट्री है उसको काफी इफेक्ट हो रहा था और इसकी वजह से हमारी मैचबॉक्स इंडस्ट्री काफी ग्रो करेगी। तो इस तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, वो थोड़ा लगता है बाहर है, उसके साउंड में भी डिस्टर्बेंस है। विशाल कंक्लूड करो। तो ठीक है, हाँ सर, तो इसी को मैं कुछ लाइंस में कंक्लूड करके ये कहना चाहूँगा ओवरऑल कि
अभी हम लोग को इस कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए फाइनली कि चाइनीज प्रोडक्ट बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए। हम लोग को इसमें अभी न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि जब तक कि हमारे सारे फैक्टर्स जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किए, इंपोर्ट कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी कॉस्ट जो कुछ भी है, जब तक ये सब हमारे फेवर में नहीं आ जाए तब तक हम लोग इस फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को जो है कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग इस पे आगे देखेंगे। और हाँ, हमारे इंडिया में काम चल रहा है और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद हम लोग इस पर काम करेंगे और कुछ टाइम बाद ये बंद हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही सर। ओके गाइज, इस जीडी में हम लोगों ने डिस्कशन करा। ओके, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है जीडी और मॉक इंटरव्यू बैंक ऑफ इंडिया के लिए तो मेरा नंबर है 7503235358। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीडी और इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद।